Hello and welcome to Law Gurukul. We have completed 3 lectures of jurisprudence: definition, books and author, rights and duties, position and ownership. In this video, we are going to take a test. इसमें jurisprudence के सभी questions mixed questions हैं. There are total 15 questions. This video is definitely going to help you in your exam preparation. So let's start. Question number 1. Which one of the following statements is incorrect? Jurisprudence के बारे में इसमें 4 statements दी गई है. Out of this 4 statement, which statement is incorrect? यानी कौन सी statement गलत है, बाकी के 3 सही हैं. Okay. Number 1. In jurisprudence, we are concerned to derive rules from authority and apply them to problems. Jurisprudence में हम authority के rules को derive करते हैं और उसको problems पे directly apply करते हैं. Number 2. In jurisprudence, we are concerned to reflect on the nature of legal rules. हम लीगल रूल्स के नेचर को समझते हैं. नंबर 3. इन jurisprudence we are concerned on the underlying meaning of legal concepts. jurisprudence में हम बेसिकली लीगल कंसेप्ट्स को समझते हैं. नंबर 4. इन jurisprudence we are concerned on the essential features of legal system. jurisprudence में हम बेसिकली लीगल सिस्टम के फीचर्स को समझते हैं. So out of these 4 options, jurisprudence के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? See, jurisprudence basically it is a theoretical study of law. Jurisprudence law का theoretical study है. It helps to understand the legal concepts, legal rules, legal system and the role of law in society. Jurisprudence हमें legal concepts, legal rules, legal system और society में law का जो role है उसे explain करता है. यानी जो भी theoretical चीजें हैं jurisprudence उनसे deal करते हैं. So out of these 4 options, option number 1, that is, jurisprudence is concerned to derive rules from the authority and apply them to problems. Jurisprudence जो है वो authority के rules को derive करके उसे problems पे apply नहीं करता. ये practical चीजें जो है वो administration का काम है, वो executive department का काम है. Jurisprudence is not concerned with these practical activities. So jurisprudence जो बाकी 3 जो statements हैं jurisprudence के लिए कि वो legal rules को नेचर ऑफ लीगल रूल्स ये बताता है, लीगल कंसेप्ट्स के मीनिंग को बताता है, लीगल सिस्टम का इसेंशियल फीचर्स भी बताता है, बट ये अथॉरिटी के रूल्स को डिराइव करके उसे प्रॉब्लम्स पर अप्लाई नहीं करता है. क्वेश्चन नंबर 2. इफ ए लीव्स हिज कार विद द ड्राइवर्स पोजीशन विल बी. कार है ए की, उसने अपनी कार को ड्राइवर को दे दिया, यानी जो कार का पोजीशन है वो ड्राइवर के पास है. तो ड्राइवर का जो पोजीशन है वो किस टाइप का पोजीशन है? हमने काइंड्स ऑफ पोजीशन और ओनरशिप में ये टॉपिक पढ़ा था. आउट ऑफ दिस 4, व्हिच वन इज द पोजीशन ऑफ ड्राइवर? इमीडिएट, वेयर इज दैट ऑफ ए वुड बी मीडिएट. यानी इसमें ये कह रहा है कि ड्राइवर का जो पोजीशन है वो इमीडिएट होगा और ए का पोजीशन मीडिएट होगा, या फिर ड्राइवर का पोजीशन मीडिएट होगा और ए का पोजीशन इमीडिएट होगा, या फिर ये कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल से रिलेटेड है. तो सबसे पहले तो हम इस मीडिएट, इमीडिएट, कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल पोजीशन के मीनिंग को समझते हैं. कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल क्या होता है? कॉर्पोरियल मतलब पोजीशन ऑफ मटेरियल थिंग्स, मूवेबल एज वेल इमूवेबल. कार, लैंड, इन सबका जो पोजीशन होता है वो कॉर्पोरियल होता है. और इनकॉर्पोरियल यानी कि जो इनमटेरियल थिंग्स है, यानी इनटैंजिबल थिंग्स, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल. सो ये जो कार का पोजीशन है वो इनकॉर्पोरियल तो हो नहीं सकता, कॉर्पोरियल हो सकता है. नेक्स्ट 2 जो है मीडिएट, इमीडिएट, उन्हें भी समझ लेते हैं. When the object is possessed through someone else, it is called mediate possession. किसी और के थ्रू अगर possession मिल रहा है तो वो mediate possession है. और when the possessor possesses the object himself, अगर वो खुद से उस object का possession लिया हुआ है तो वो होता है immediate possession. Now out of these 4 options, option 1 is correct. That is, जो driver का possession होगा वो immediate होगा और A का mediate होगा, क्योंकि A का कार तो एक ही है. तो ए के पास जो पोजीशन है वो ड्राइवर के थ्रू है. ओके, क्योंकि पोजीशन अभी इमीडिएटली ड्राइवर के पास है, तो ड्राइवर का पोजीशन हो गया इमीडिएट पोजीशन और ए की कार है इसलिए ए का पोजीशन हो गया मीडिएट पोजीशन. नेक्स्ट, असर्शन रीजन. ये कई बार कंफ्यूज कर देते हैं. सो सबसे पहले हम सेंटेंस को पढ़ेंगे और उसके मीनिंग को क्लियर समझ जाएंगे, देन वी विल गो फॉर द ऑप्शंस. असर्शन ये कह रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर ऑफ एन ओनर इज द राइट टू एक्सक्लूड अदर्स. ओनर का एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है कि वो दूसरे को उस चीज को यूज करने से एक्सक्लूड कर सकता है. ठीक है, ओनर के पास ये राइट है ना कि अगर मैं किसी चीज की ओनर हूं तो मेरे पास ये राइट है कि मैं वो थर्ड पर्सन को या सेकंड पर्सन किसी को भी
वो चीज यूज करने की परमिशन ना दूं, उस पर्सन को एक्सक्लूड कर दूं। सही है। रीजन क्या दे रहा है? द ओनर में ग्रांट टू अनदर मेनी ऑफ हिज राइट्स एंड येट रिमेन ओनर। ओनर जो है वो अपने थिंग का, अपने ऑब्जेक्ट का राइट, कुछ राइट्स दूसरे को दे सकता है, फिर भी वो उस चीज का ओनर बना रहेगा। हाँ, जैसे कि हम रेंट वाले ऑप्शन, हाउस और रेंट वाले उसमें केस में देखते हैं कि घर किसी और का है, बट उसमें जो उसके जो राइट्स है, घर को यूज करने का जो राइट है वो किसी और के पास है, फिर भी जो ओनर, एक्चुअल ओनर है, ही इज स्टिल द ओनर, जबकि उसने अपने कुछ घर को यूज करने के कुछ राइट्स जो है वो किसी और को दे रखे हैं। सो इसमें ये कहना है कि असर्शन जो है दूसरे को एक्सक्लूड करना, और रीजन क्या दे रहा है? रीजन दे रहा है ये ओनर के फीचर्स को बता रहा है। सो इन दिस क्वेश्चन ए एंड आर यानी असर्शन और रीजन दोनों ट्रू तो है, यानी असर्शन में जो बात कही गई है कि ओनर जो है वो दूसरे पर्सन को राइट से एक्सक्लूड करने का भी राइट है, वो सही है। और जो रीजन में जो स्टेटमेंट दी गई है कि ओनर जो है वो कुछ राइट्स देकर भी खुद ओनर रह सकता है, ये रीजन भी करेक्ट, जब स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है, बट ये पहले वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। पहला वाला जो स्टेटमेंट है यानी जो असर्शन है वो ओनर्स के राइट बताता है, बट जो रीजन दिया हुआ है वो ओनर के फीचर्स बता रहा है। सो ए एंड आर आर ट्रू, ये दोनों करेक्ट तो हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, which one of the following is not a theory of nature of legal person? लीगल पर्सन के नेचर से रिलेटेड थ्योरी नहीं है। पर्पस थ्योरी, फिक्शन थ्योरी, इंटरेस्ट थ्योरी और ब्रैकेट थ्योरी। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि लीगल पर्सन्स के थ्योरी है कौन कौन से। थ्योरीज ऑफ लीगल पर्सन्स आर फिक्शन थ्योरी, कंसेशन थ्योरी, रियलिस्ट थ्योरी, ब्रैकेट थ्योरी, पर्पस थ्योरी। ये 5 थ्योरीज जो है वो लीगल पर्सन से रिलेटेड है। सो आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस कौन सा जो थ्योरी है वो लीगल पर्सन से रिलेटेड नहीं है? इंटरेस्ट थ्योरी, क्योंकि इंटरेस्ट थ्योरी और विल थ्योरी जो है वो लीगल राइट से रिलेटेड है। बाकी के जो 3 ऑप्शंस है, पर्पस थ्योरी, फिक्शन थ्योरी एंड ब्रैकेट थ्योरी, ये तीनों थ्योरी नेचर ऑफ लीगल पर्सन से रिलेटेड है। सेम क्वेश्चन जो है वो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के उसमें आता है। लीगल पर्सन एंड कॉर्पोरेट पर्सनालिटी आर द सेम थिंग। सो इस क्वेश्चन को लीगल पर्सन की जगह पे अगर कॉर्पोरेट पर्सनालिटी करके सेम क्वेश्चन पूछता है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। द आंसर विल बी सेम, दैट इज द इंटरेस्ट थ्योरी, क्योंकि पर्पस थ्योरी, फिक्शन थ्योरी और ब्रैकेट थ्योरी जो है वो लीगल पर्सन और कॉर्पोरेट थ्योरी, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी से रिलेट करते हैं, एंड इंटरेस्ट थ्योरी एंड विल थ्योरी जो है वो लीगल राइट से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट इज ए हैज अ हाउस and nobody should interfere with the enjoyment of proprietary right over the house. एक के पास जो हाउस है उस पे किसी और का कोई और प्रोप्राइटरी राइट, किसी और का प्रोप्राइटरी राइट नहीं है। तो इस टाइप के राइट्स को क्या कहते हैं? राइट इन पर्सनम, राइट इन रेम, पर्सनल राइट और इम्परफेक्ट राइट। हमने ये काइंड्स ऑफ राइट्स में पढ़ा था। द आंसर इज राइट इन रेम। राइट इन रेम होता क्या है? इट इज अ राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड, यानी घर मेरा है और मेरा जो राइट है वो बाकी सभी के लिए है, यानी मेरे अलावा कोई भी वर्ल्ड में कोई भी पर्सन जो है वो मेरे इस हाउस के राइट पर इंटरफेयर नहीं कर सकता है। सो दिस राइट इज राइट इन रेम। राइट इन पर्सनम क्या होता है? जब किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट होता है। तो घर मेरा है तो मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट तो मेरा घर नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि मेरा घर है तो जो नेबर है वो मेरे घर पे यूज नहीं कर सकता, उसका मेरे घर पे कोई राइट नहीं है, बट किसी थर्ड पर्सन का है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस नहीं है मेरे हाउस के प्रॉपर्टी पे, ठीक है। इसीलिए ये जो हाउस वाली चीज है वो राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड है। हाउस के ऊपर जो मेरी प्रोप्राइटरी राइट है वो राइट इन रेम है। पर्सनल राइट भी नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल राइट तो है वो किसी वेल बीइंग और स्टेटस से रिलेटेड होता है। इट इज राइट टू रेपुटेशन, डिफेमेशन। सो ये पर्सनल राइट भी नहीं होगा, तो आंसर विल बी राइट इन रेम। नेक्स्ट, सेम असर्शन रीजन है। इसमें भी स्टेटमेंट को पहले अच्छे से समझेंगे कि ये क्या कह रहा है। असर्शन ये कह रहा है a person in possession of a thing is deemed to be the owner of the thing possessed. किसी पर्सन के पास किसी ऑब्जेक्ट का पोजेशन है तो उसे डीम्ड ओनर माना जा सकता है। करेक्ट है, ये हमने पढ़ा है। पोजेशन और ओनरशिप में मैंने इस चीज को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है जूरिस्प्रूडेंस की तो पहले आप उन वीडियोस को देखो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है और आपको चैनल में प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। जूरिस्प्रूडेंस के प्लेलिस्ट में आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगे। आप उन वीडियोस को देखिए
उनसे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर ये सारे क्वेश्चन तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। तो असर्शन में जो कहा गया है कि अगर किसी पर्सन के पास किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन है तो उसे डीम्ड ओनर माना जाएगा। हाँ, माना जाएगा। रीजन क्या दे रहा है? पोजीशन इज एज गुड एज ओनरशिप। अब ये रीजन ये बता रहा है कि पोजीशन जो है वो ओनरशिप के जैसा ही माना जाएगा। यहाँ ये कह रहा है कि पोजीशन और ओनरशिप दोनों सेम चीजें हैं। इज इट करेक्ट? नो, इट्स नॉट करेक्ट। पोजीशन और ओनरशिप दोनों अलग अलग चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि जिसके पास पोजीशन है वो उसका ओनर भी हो। ओके, तो द रीजन गिवन इज रॉन्ग, बट द असर्शन जो ये कह रहा है कि अगर किसी के पास पोजीशन है उसे हम डीम्ड ओनर मान सकते हैं, तो वो करेक्ट है। वो एक्चुअल ओनर नहीं है, वो डीम्ड ओनर है। ओके, सो द रीजन विल बी रॉन्ग एंड असर्शन इज ट्रू। नेक्स्ट इज असर्शन। अ क्लेम टू रिकवर डेब्ट barred by lapse of time is an imperfect right. Imperfect right क्या होता है? कि जिसकी कोई लीगल एनफोर्समेंट नहीं होती है। तो assertion ये कह रहा है कि टाइम बार्ड डेब्ट के क्लेम को रिकवर करना ये एक imperfect right है। रीजन ये दे रहा है, द स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन डज नॉट प्रोवाइड दैट आफ्टर अ सर्टेन टाइम अ डेब्ट शैल बिकम एक्सटेंट। लिमिटेशन एक्ट है, ये हमने पढ़ा होगा, LLB में पढ़ा हुआ है पहले CPC के साथ में लिमिटेशन एक्ट। तो लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी टाइम बार डेब्ट है, तो अगर टाइम हमारा लैप्स हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि उस डेब्ट पे हमारा अब कोई राइट नहीं और वो डेब्ट खत्म हो गया। ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन जो असर्शन है कि अ क्लेम टू रिकवर डेब्ट बार्ड बाय लैप्स ऑफ टाइम इज एन इम्परफेक्ट राइट। यस, ये इम्परफेक्ट है। और जो स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन जो है वो हमें ये राइट दे रहा है कि टाइम लैप्स होने के बाद भी हमारा डेब्ट पे जो राइट है वो एक्सटिंक्ट नहीं हो जाता है। ये भी करेक्ट है। सो ये पहला जो फर्स्ट इज करेक्ट, दैट इज A and R बोथ आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। दोनों ही सही है और ये जो रीजन है वो पहले वाले स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी कर रहा है। ठीक है, इम्परफेक्ट राइट तो है ही, बट लिमिटेशन एक्ट में ये कहा गया है कि ये टाइम बार्ड डेब्ट जो है वो एक्सटेंट नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता है कोई भी डेब्ट टाइम लैप्स होने से। So the answer is A and R are true and R is the correct explanation of A. Next, the statement equitable ownership of a legal right is different from the ownership of an equitable right shows that law and equity differ with regard to, यानी ये statement ये कह रहा है कि equitable ownership जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ एन इक्विटेबल राइट, यानी जो पोजीशन है वो ओनरशिप से डिफरेंट है विथ रिगार्ड टू व्हाट? सिर्फ राइट के एग्जिस्टेंस के लिए, राइट के ओनरशिप के लिए, दोनों के लिए, या फिर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ राइट बट नॉट रिगार्डिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ राइट। आंसर इज फॉर बोथ। पोजीशन और ओनरशिप जो है वो दोनों डिफरेंट चीजें हैं विथ रिगार्ड्स टू एग्जिस्टेंस भी एंड ओनरशिप भी। Who among the following is not the exponent of philosophical school? Jurisprudence के सबसे पहले लेक्चर में हमने ये स्कूल्स पढ़ा था। तो philosophical school से which one of these are not related? Hegel, Kant, Pushta, Holland. The answer is Holland. Hegel, Kant and Pushta, ये all these three are related to the philosophical school. Holland is not related to the philosophical school. The jural correlative of right is duty. What are the jural correlatives of liberty, power and immunity respectively? Right का correlation है duty. हमने पढ़ा था correlation and co-opposition. ठीक है, इसमें क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है कि वो पूछ क्या रहा है, correlation पूछ रहा है या opposition पूछ रहा है। ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है correlation किसका? liberty, power and immunity. liberty का no claim, power liability, इम्यूनिटी का पावर, ऐसे ही इसमें 3 ऑप्शंस हैं रेस्पेक्टिवली, एक एक करके लिबर्टी का फर्स्ट वाला है, पावर का मिडिल वन है एंड इम्यूनिटी का लास्ट वाला। तो आउट ऑफ दिस 4 विच इज करेक्ट? कोरिलेशन पहले है क्या? राइट्स का ड्यूटीज होता है, ये तो पहले इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। प्रिविलेज का होता है नो राइट, लिबर्टी नो क्लेम, पावर लाइबिलिटी, इम्यूनिटी डिसेबिलिटी। ओके, सो द आंसर विल बी last one, liberty no claim, power liability, immunity disability. The Limits of Jurisprudence Defined was published in 1945
इट वाज रिटन इन 1782 बाय, अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन सिंपली ये पूछ सकता था कि द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड इज रिटन बाय व्हिच ऑथर, लेकिन इसको थोड़ा सा बड़ा करके पूछ दिया है कि दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 1945, बट ये बुक लिखा गया था इन द ईयर 1782, यानी काफी पहले ये बुक लिख दिया गया था, बट ये पब्लिश हुआ इन 1945। द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, इसे किसने लिखा था? बेंथम, ब्लैकस्टोन, हॉब्स, लॉक। बेंथम ने लिखा था द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। राइट ऑफ अ पर्सन नॉट टू बी असॉल्टेड इज व्हाट काइंड ऑफ राइट? राइट, एक पर्सन का राइट है कि उसे कोई असॉल्ट ना करे, तो ये राइट्स के कैटेगरी में कौन सा राइट है? राइट इन re-propria, राइट इन rem, राइट इन personam, राइट इन re-aliena। तो सबसे पहले आप ये चीज बिल्कुल अपने माइंड में रख लो कि कोई भी किसी भी टाइप का क्राइम या टॉर्ट होता है तो वो होता है राइट इन rem। राइट अगेंस्ट दी वर्ल्ड है, क्योंकि राइट इन rem जो है वो पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट एक राइट दे रहा है। टॉर्ट, क्राइम, ये सारे राइट्स राइट इन rem में आते हैं, और राइट इन personam में सारे कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स आते हैं। तो जो असॉल्ट करना ये एक क्राइम है, सो द आंसर विल बी राइट इन rem। राइट ऑफ अ पर्सन नॉट टू बी असॉल्टेड इज अ राइट इन rem, यानी ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, इसीलिए ये जो राइट होगा वो राइट इन rem आएगा। ओनरशिप ऑफ गुडविल ऑफ अ बिजनेस, गुडविल ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस पे जो गुडविल है उस पे भी तो हमारा ओनरशिप राइट है, तो ये किस टाइप का ओनरशिप है? लिमिटेड, कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, बेनिफिशियल। बेनिफिशियल तो नहीं हो सकता क्योंकि ये ट्रस्ट बेनिफिशियरी वाले में आता है, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट है, एक कट गया। लिमिटेड ओनरशिप भी नहीं हो सकता क्योंकि इस पे हमारा अनलिमिटेड राइट होता है, क्योंकि ये ओनर गुडविल जो है वो मेरी अपनी पर्सनल है, सो लिमिटेड भी नहीं होगा। अब बच गए कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल। कॉर्पोरियल क्या होता है? जो मटेरियल थिंग्स पर राइट होता है वो होता है कॉर्पोरियल पोजीशन, कार, लैंड, इन सब चीजों पर। इनकॉर्पोरियल क्या होता है? ये इनमटेरियल और इनटैंजिबल थिंग्स पर होता है। तो ये जो गुडविल है दैट इज इनटैंजिबल, सो द आंसर विल बी इनकॉर्पोरियल ओनरशिप। द ओनरशिप ऑफ गुडविल ऑफ अ बिजनेस इज इनकॉर्पोरियल ओनरशिप। The term legal theory has been first time coined by, ये लीगल थ्योरी जो टर्म है सबसे पहले इस वर्ड को किसने यूज किया था? हैंस केल्सन, फ्रीडमैन, सैमंड, रोलैंड, ड्वर्किन। फ्रीडमैन, W. फ्रीडमैन। The term legal theory has been for the first time coined by W. फ्रीडमैन in 1945। उन्होंने अपनी बुक लिखी थी लीगल थ्योरी, उस बुक में फर्स्ट टाइम इन्होंने इस टर्म को डिफाइन किया था। So here the quiz end. I hope this video is quite beneficial for you. आप कमेंट बॉक्स पे अपने स्कोर भी लिखे। Thank you for watching the video. See you soon with a new one.